बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर की केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कोई मेटल आ जाए। सिंपल, इट मे बी मैग्नीशियम, इट मे बी लिथियम, इट मे बी जिंक, इट मे बी कॉपर एट्सेट्रा। यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोई मेटल अपीयर हो जाए तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। In the class of organic metallic compounds, Grignard reagent is a special class in which Grignard reagents are also called alkyl magnesium bromide. Alkyl magnesium bromides. Grignard reagents. Alkyl mean R, magnesium Mg एंड हेलोजन कोई भी X यहाँ पे हो सकता है, हेलाइड RMgX। अब अल्काइल हेलाइड में मैग्नीशियम का आ जाना, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स कहलाते हैं, या इनको आप ऑर्गेनो मैग्नीशियम हेलाइड्स भी कह सकते हैं। अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड्स और ऑर्गेनो मैग्नीशियम हेलाइड्स। नाउ व्हाई दीज आर कॉल्ड ग्रिग्नार्ड reagents? Grignard reagents because Victor Grignard was the scientist. Victor Grignard, who firstly prepared and discovered these organic compounds. Victor Grignard साइंटिस्ट था जिसने इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे काम किया। That's why the name of these compounds is Grignard reagent. In 1912, Victor Grignard also awarded as Nobel Prize, awarded by Nobel Prize, because organic compounds have very synthetic applications. Synthetic applications. They are very important synthetically because number of organic compounds can be prepared from these Grignard reagents like aldehydes, ketones, alkynes, alcohols. बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनसे बनते हैं, इसलिए इनको जो है वो सिंथेटिक एप्लीकेशन इनकी ज़्यादा है, तो इसलिए विक्टर ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नेमिंग इज़ वेरी सिंपल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, तो इसका सिंपल नाम, पहले अल्काइल को नाम देंगे मिथाइल, फिर आएगा मैग्नीशियम, जो भी हेलाइड है, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रोमाइड है तो ये हो जाएगा ब्रोमाइड, क्लोराइड है तो क्लोराइड हो जाएगा, इसी तरह आयोडाइड है तो आयोडाइड हो जाएगा। ये तो शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था इनका। अब इनकी प्रिपरेशन की तरफ आते हैं कि हाउ ग्रिग्नार्ड reagents can be prepared. Grignard reagents can be prepared simply by reacting alkyl halides with magnesium, freshly prepared magnesium in the presence of ether as a solution. RMgX Grignard reagents are formed. This reaction takes place in two steps. In first step, RX, when treated with magnesium, they produced alkyl free radical, and MgX, magnesium halide free radical. This is first step. This is also called slow step. In second step, these two free radicals, alkyl free radical and magnesium free radical, combine to form RMgX. अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड दूसरे स्टेप में इनसे बन जाता है।
This is simple formation of Grignard reagents. What is the function of ether here? Ether can play two functions. One is it is solvent for reaction. ये reaction के लिए solvent है. And the second reason is it surround the Grignard reagents by solvation process. सॉल्वेशन की मदद से ग्रिग्नार्ड reagents को ये जो है वो सराउंड कर देता है. Where Grignard reagent is needed, the ethereal solution of Grignard reagent is used. ethereal solution यूज होता है Grignard reagent का जहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़े. So this is short and simple preparation of Grignard reagents. Next is reactivity. Reactivity of Grignard reagents. रिएक्टिविटी के लिए हम इसकी स्ट्रक्चर को लेंगे RMgX. This is partial positive metal and carbon atom is partial negative. This polar bond is responsible for the reactivity of Grignard reagents. This carbon is electron denser, that's why partial negative charge appears. Highly electronegative as compared to magnesium. ये कार्बन जो है वो नेगेटिव होने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है. न्यूक्लियस लविंग न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, जिसकी वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स या करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी कर सकते हैं. अब इनके रिएक्शंस की तरफ आते हैं, जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस इसने बुक में दिए हुए हैं. तो रिएक्शंस में सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को ट्रीट कराया हुआ है एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ. विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, reaction with aldehyde and ketones. This reaction is completed in can take place in three conditions. If you use simple alkyl halide, simple aldehyde, that is formaldehyde. अगर आप सिंपल फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करेंगे तो आपका प्रोडक्ट बनेगा प्राइमरी अल्कोहल. एंड इफ you used other higher aldehyde, then you have secondary alcohol as a product, secondary alcohol. And if we use ketone, if we treat ketone with Grignard reagents, then tertiary alcohol will be the product. तो इन तीन कंडीशंस में यहाँ पे ये रिएक्शन होगा. सबसे पहले लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ और देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है. RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड दिस इज फॉर्मल्डिहाइड. देखें जी, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव कार्बन एंड दिस इज पार्शियल नेगेटिव अल्काइल ग्रुप एंड दिस मैग्नीशियम इज पॉजिटिव. ये अल्काइल का पार्शियल नेगेटिव आएगा यहाँ पे कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव पे. एज अ रिज़ल्ट ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ. क्या होगा जी, ये आर इस कार्बन के साथ अटैच हो गया. एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन पहले से मौजूद हैं. ऑक्सीजन का बॉन्ड सिंगल हो गया और ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज. इस नेगेटिव चार्ज के साथ जो पॉजिटिव पार्ट लगेगा MgX. तो ये दरमियान में एक इंटरमीडिएट स्टेट बनी. अब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे आप. हाइड्रोलिसिस मीन इट विल बी ट्रीटेड विद वाटर. होगा क्या, सिंपल है, RCH, बाकी चीज़ें इसी तरह होंगी. इस O के साथ
ये वाटर का H आ जाएगा, तो ये बन जाएगा OH। ये MgX बाहर निकलेंगे, MgX, और इसके साथ लग जाएगा वाटर का OH। तो ये देखें आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, प्राइमरी अल्कोहल। इसको 1 अल्कोहल भी कहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को 2 अल्कोहल कहते हैं, और टर्शरी को 3 अल्कोहल। तो ये आपने रिएक्शन करवाया जी फॉर्मल्डिहाइड के साथ, सिंपल। अब बहुत आसान है। नेक्स्ट आप कोई हायर एल्डिहाइड लें RMgX के साथ, देखें ये RMgX, सेम रिएक्शन होगा। हायर एल्डिहाइड का क्या मतलब हुआ कि आपका फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, कोई दूसरा एल्डिहाइड है, तो सेम मैकेनिज्म, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव आएगा इधर, ये बॉन्ड टूट जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, आपका प्रोडक्ट R ये पहले से मौजूद है, C, ये R ग्रेगनार्ड रिएजेंट वाला R, ये H पहले से मौजूद है, O जब नेगेटिव हो जाएगा O के साथ आ जाएगा MgX। दिस इज इंटरमीडिएट स्टेट। सेम आप करेंगे हाइड्रोलिसिस, H और OH के साथ रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ, यानी आपका R पहले से मौजूद है, C ये वाला R, ये H अपनी जगह पे, मैंने कहा कि ये वाला जो O है उसके साथ वाटर का आ जाएगा H, ये बना देंगे OH, प्लस MgX चला गया बाहर, और MgX के साथ वाटर का OH आ जाएगा। तो ये देखें ये वाला जो अल्कोहल बना है, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, या इसको 2 अल्कोहल भी कहते हैं। 2 अल्कोहल मीन सेकेंडरी अल्कोहल ही होता है। तो मैंने जिस तरह ऊपर आपको बताया था कि हायर एल्डिहाइड के साथ आप स्टार्ट करेंगे तो आपका प्रोडक्ट जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। नेक्स्ट आप इसको रिएक्शन करवाएंगे किसी कीटोन के साथ। कीटोन के साथ जब आप रिएक्शन करवाएंगे ग्रेगनार्ड रिएजेंट्स को, तो मैंने कहा प्रोडक्ट जो है आपका टर्शरी अल्कोहल बनेगा। ग्रेगनार्ड रिएजेंट लेते हैं RMgX प्लस RC डबल बॉन्ड OR, दिस इज कीटोन। ये पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ पे, एज अ रिजल्ट ये बॉन्ड टूटेगा इधर। देखें R ये वाला, C R ये पहले से जो मौजूद है, और ये तीसरा R जो ग्रेगनार्ड रिएजेंट वाला आ गया, और O के साथ आ गया MgX। सिंपल। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हाइड्रोलिसिस करेंगे, OH के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो देखें R C R, ये R मौजूद है, O के साथ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, MgX बाहर आ गया और उसके साथ आ गया OH। ये कौन सा अल्कोहल बना, टर्शरी अल्कोहल बन गया। टर्शरी अल्कोहल को 3 अल्कोहल भी कहते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल, हायर एल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी, और कीटोन्स के साथ टर्शरी अल्कोहल बन गया। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है रिएक्शन विद एस्टर्स, रिएक्शन विद ईस्टर्स। ईस्टर्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे ग्रेगनार्ड रिएजेंट्स को। ईस्टर में 2 हेडिंग्स में रिएक्शन करवाएंगे हम। पहली में है रिएक्शन विद इथाइल फॉर्मेट। इथाइल फॉर्मेट फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मिक एसिड से है। किसको कहते हैं इथाइल फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट कहते हैं ये आपका इथाइल ग्रुप C2H5, और ये आपका फॉर्मिक एसिड वाला फॉर्मेट आइन। तो ये आपका इथाइल फॉर्मेट आ गया है, इथाइल ये पार्ट और ये फॉर्मेट पार्ट। इसको आप रिएक्शन करवाएं किसी ग्रेगनार्ड रिएजेंट से RMgX से, और आप
रिएक्शंस में देखेंगे ये जो इथाइल है C2H5 इसकी जगह ET लिखा होगा, तो ET जहाँ पर भी लिखा होगा आप उससे यही मतलब लेंगे इथाइल। सिंपल है, वही प्रोसेस फॉलो होगा। देखें ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और यहाँ आएगा ये बॉन्ड टूटेगा इधर, क्या होगा जी, H मौजूद है पहले से, C यहाँ पे R आ गया, O C2H5, O के साथ क्या आ गया जी, MgX आ गया, O के साथ MgX या MgBr। यहाँ पे आप X लेंगे तो यहाँ पर भी X लेंगे, यहाँ पे Br लेंगे तो यहाँ पर भी Br लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये जो OET है ये जो OC2H5 आपका OC2H5 और ये MgX ये रिमूव हो जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, क्या होगा, और ये वाला C ये बॉन्ड डबल हो जाएगा, डबल बॉन्ड O और ये H, ये आपका क्या बना, एल्डिहाइड। फर्स्ट स्टेप में बना एल्डिहाइड। नेक्स्ट स्टेप में फर्दर आप इसको ग्रेगनार्ड रिएजेंट के साथ लेंगे, यानी नेक्स्ट RMgX आप लेंगे तो वही वाला स्टेप आ जाएगा जो हमने ग्रेगनार्ड रिएजेंट्स का लिया था एल्डिहाइड के साथ। तो ये आप लेंगे, देखें ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये अटैक करेगा इस पे, ये बॉन्ड टूटेगा इधर, R C इधर H इधर R O और O के साथ क्या आ गया, MgX किधर जाएगा फिर, अब हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस होगी तो मतलब H और OH के साथ आप जो है वो रिएक्शन करवाएंगे। ये R C H को मैं नीचे की तरफ लिखता हूँ इस H को, और ये दूसरा R O हाइड्रोलिसिस के बाद O के साथ क्या होता है H प्लस MgX और OX के साथ क्या आ गया OH। तो ये जो बना आपका क्या बन गया, ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। यानी आपने इथाइल फॉर्मेट से स्टार्ट किया तो फिर भी आपका प्रोडक्ट क्या बना, सेकेंडरी अल्कोहल बना। अब आप दूसरा लेते हैं, रिएक्शन विद इथाइल एसीटेट, रिएक्शन विद इथाइल एसीटेट। तो एसीटेट किसको कहते हैं, एसीटेट इसको कहते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, इस आयन को एसीटेट कहते हैं, और इसके साथ C2H5 लग जाए तो इसको इथाइल कहते हैं। ये इथाइल पार्ट है और ये एसीटेट पार्ट है, समझना है इसको। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OET, तो ये लिखा होगा तो ये भी आपका क्या होगा, इथाइल एसीटेट। हम इसको ऐसे लिख के रिएक्शन करवाएंगे इथाइल एसीटेट के साथ। तो सेम मैकेनिज्म होगा, थोड़ा सा फ़र्क होगा। फ़र्क ये होगा कि सेकेंडरी अल्कोहल के बजाय आपका टर्शरी अल्कोहल बनेगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ RMgX को ले लेते हैं इथाइल एसीटेट के साथ, OET इथाइल एसीटेट। अच्छा जी, क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये R यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड यूं टूटेगा, ये CH3 अपनी जगह पे, ये C यहाँ पे R, OET अपनी जगह पे, ये O नेगेटिव हो जाएगा और इसके साथ क्या आ जाएगा
MgX आ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये OET और MgX यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, निकल जाएंगे बॉन्ड अपना तोड़ के। ये कैसे निकलते हैं, ये बॉन्ड इधर को टूटता है, ये जब इधर को टूटता है ना तो ये CH3 C, ये बॉन्ड इधर को टूट गया, C डबल बॉन्ड O ये वाला, और ये इसके साथ R बन गया, प्लस यहाँ से निकल गया ये बाकी चीज़। अब क्या करेंगे, इसी की हाइड्रोलिसिस कर देंगे, H और नहीं एक और RMgX, एक और RMgX लेंगे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये यहाँ पे आएगा R, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, बड़ा सिंपल है ये देखें, CH3 C के साथ ये ग्रेगनार्ड रीजेंट वाला R, ये दूसरा R पहले से मौजूद है, O के साथ क्या लगेगा, MgX पॉजिटिव पार्ट। अब क्या करेंगे, अब हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस सिंपल है, बाकी को उसी तरह लिखें, CH3 C R O के साथ क्या आएगा, वाटर वाला H, प्लस MgX बाहर और MgX के साथ वाटर वाला OH। तो ये क्या बना, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये टर्शरी अल्कोहल बना, टर्शरी अल्कोहल। मीनिंग क्या मतलब, when Grignard reagents reacted with ethyl acetate, tertiary alcohol is formed as a product। अच्छा जी, लास्ट रिएक्शन है Grignard reagents का, रिएक्शन विद CO2, रिएक्शन विद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO के साथ रिएक्शन करके ये बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं प्रोडक्ट। देखते हैं कैसे बनता है जी। ग्रेगनार्ड रीजन लेते हैं, RMgX प्लस CO2। इसको अगर मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखूँ आपके लिए, RMgX CO2 को अगर यूँ लिखते हैं आप, यूँ CO2 लिख दिया। अब इसको कार्बन डाइऑक्साइड है ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे आएगा। एज अ रिज़ल्ट इन दोनों में से किसी का एक बॉन्ड जो है वो टूटेगा। तो देखें ये R मैंने लगाया, इसके साथ C, ये डबल बॉन्ड O उसी तरह मौजूद है, ये O के साथ क्या लगेगा जी, MgX लग जाएगा, MgX लगा। नेक्स्ट सिंपल आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, उसी तरह हाइड्रोलिसिस में H आएगा, OH आएगा, R C डबल बॉन्ड O, इस O के साथ क्या आ जाएगा, वाटर का H, प्लस MgX तो बाहर ही जाते हैं और उनके साथ आ गया वाटर का OH। ये जो चीज़ बनी है ये क्या बनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ ग्रेगनार्ड रिएजेंट। वेरी सिंपल है, आप रिएक्टेंट्स का आपको पता हो और प्रोडक्ट्स का पता हो और मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होता है ये पता हो तो इजीली आप रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ग्रेगनार्ड रिएजेंट्स का सबसे पहला रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ। आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल प्रोडक्ट बनेगा। हायर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल प्रोडक्ट बनेगा, और कीटोन्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो टर्शरी अल्कोहल प्रोडक्ट बनेगा। फिर इसी तरह इथाइल फॉर्मेट से रिएक्शन करवाएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, इथाइल एसीटेट से रिएक्शन करवाएंगे तो टर्शरी अल्कोहल बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाने पर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रिएक्शंस ऑफ ग्रेगनार्ड रिएजेंट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।